Hello students, so we were talking about the electrolysis of the electrolytes, and I told electrolysis of electrolytes we discussed in previous video as well. It dissociates into its component ions. But remember, when we talked about the electrolysis of electrolyte, then I shared one point with you. I am repeating this one point, that product of electrolysis depends on two factors. And what are these two factors? Important. It depends on either molten, means either electrolyte is dissociated in its molten state, in molten or in aqueous solution. This is one of the very important point. And second, it also depends on the use of electrode, which electrode is being used. Means different products we get, different products when we are using inert or reactive electrodes. Remember it. So these are the two important points. Electrolysis of salt gives us its component, breaks into its component ions, but the component ions or what you will get, it depends whether your electrolyte is dissociated in molten state or in aqueous solution, you must say, or the same electrolyte is dissociated using which kind of electrodes. So different products we get when we are using inert electrode and reactive electrodes, we get different products. In this context, let us consider one example. And let us consider just, listen, that we had already discussed in previous video कि molten state और aqueous solution में आपको अलग अलग product मिलेगा. You can memorize कि yes, we talked about the electrolysis of molten NaCl and we discussed the electrolysis of the aqueous NaCl. We get the different products. So in previous video we have discussed the different products you are getting, the different dissociation of molten and aqueous salt. Now we are talking the effect of electrodes on the product. We are talking about effect of electrodes, and in this context what we have, we are talking about electrolysis of aqueous solution of copper sulfate. There are two conditions we are talking with you. One, electrolysis using platinum electrode, which is an inert electrode. Inert electrode means it is not going to participate in the reaction. And then at the same time we will discuss about using of, you can say, electrolysis of aqueous solution of copper sulfate using copper electrode, which is a reactive electrode. So I am just comparing the two things. For example, let us take this first example. This is electrolysis of aqueous solution of copper sulfate using platinum electrode. We are using the platinum electrode, and when we use this platinum electrode, what do we find? I told, मैंने बोला आपको कि ये aqueous solution of copper sulfate है. मीन्स ये दो components हैं, एक copper sulfate है और एक water है. So this copper sulfate is dissociated to form copper ion and to form sulfate ions, and water is dissociated to form H ions and OH negative ions. So same, we have two ions at cathode and we have two ions at anode as well. These two ions will be at cathode and these two ions will be at anode. Now at anode, what I told you, I just gave you an idea कि वही किसी इलेक्ट्रोड पर कौन सा आयंस, when we have two ions, when we have two options, तो कौन सा आयंस डिस्चार्ज होगा? It depends on their discharge potential. Discharge potential means discharge energy. ये अपने आप को डिस्चार्ज करने के लिए इनको कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, आयन को डिस्चार्ज करने के लिए कितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड है. आप इसको डिस्चार्ज पोटेंशियल करके प्रोनाउंस करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, और मैंने क्या बोला कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिसकी डिस्चार्ज एनर्जी कम होगी, जिसको कम एनर्जी चाहिए, कम पोटेंशियल चाहिए टू डिस्चार्ज, वो आयन डिस्चार्ज होगा.
तो हमने एनोड पर नोटिस किया वी हैव 2 आयंस, OH नेगेटिव आयन एज वेल एज वी हैव SO4 डाई नेगेटिव आयंस. सो नाउ OH नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होगा एनोड पर, सल्फेट आयन नहीं. और जो हमने बोला OH नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज मीन्स चार्ज को हटाएगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हटाने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये ऑक्सीडाइज होगा. तो एनोड पर OH नेगेटिव, सल्फेट आयंस बोथ आर प्रेजेंट, बट OH नेगेटिव आयन डिस्चार्ज इटसेल्फ बाय ऑक्सीडेशन. अपने आप को न्यूट्रल करेगा विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इट ऑक्सीडाइजेस. This is OH negative ion. It releases electron, 2 electrons. It forms 1 molecule of water and it gives nascent oxygen. Primary change. Now 2 nascent oxygen combines to form oxygen. Secondary change. That also we had discussed with you. So what do you find? At anode, oxygen is liberated. Which gas comes out of the anode? Oxygen gas comes out of the anode. Now if we talk about the cathode, now what do you find? Now 2 ions are at cathode. We have 2 ions at cathode. We have H positive ion and copper ions. But copper ion reduces. Now tell why copper ion will reduce? Correct. Because it has lower discharge potential. भूलना नहीं, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही डिस्चार्ज होगा, वही न्यूट्रलाइज होगा. तो यहाँ दोनों में H आयन और कॉपर आयन में कॉपर आयन अपने आप को डिस्चार्ज करेगा. कैसे? इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तभी कैथोड पर रिडक्शन होगा. तो यू कैन से एट कैथोड कॉपर आयन डिस्चार्ज इटसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. व्हाट आई एम टेलिंग यू, remember we are using this, or we are talking about electrolysis of copper sulfate solution using inert platinum electrode. I am just briefing it once again. Last, we have at anode OH negative ion and sulfate ion. OH ion discharge itself by oxidation and produces oxygen. At cathode we have H ions and copper ion. In place of H ion, copper ion reduces or discharge itself by the process of reduction. So means at cathode copper settle down, at anode we get the oxygen. I just want to tell you one thing. Normally questions ऐसे आते हैं कि आपसे कहा जाएगा कि you are doing the electrolysis of aqueous solution of copper sulfate using platinum electrode. Tell the product of cathode and anode. तब आप एनोड पे क्या प्रोडक्ट बोलेंगे? आप बोलेंगे ऑक्सीजन मिला है एनोड पर सर और कॉपर मिला है कैथोड पर. ये प्रोडक्ट कहलाएंगे आपके पास. क्वेश्चन यही आता है. एक बार आप ये रिएक्शन ना भी लिखें बेस्ट होता है, नहीं भी याद आ रहा है कम से कम ये प्रोडक्ट आप ध्यान रखें आप. पर ये तभी आपको याद रहेगा जब आपको रिएक्शंस भी मालूम होंगी. व्हाट नेक्स्ट? ये था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. लेट वी कैरिड आउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड. ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है. एवरी टाइम रिमेंबर, जब आप जिस सॉल्ट सॉल्यूशन का, आप जिस मेटल सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, उसी मेटल रॉड्स को आप एज एन एनोड और कैथोड इस्तेमाल करते हो, वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स में आ जाता है. समझ लेना. अभी आप कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो यहाँ पर, तो अगर आपने कॉपर इलेक्ट्रोड्स को यूज़ किया तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स में आएगा. आपने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को यूज़ किया, आपने सिल्वर इलेक्ट्रोड को यूज़ किया, तो वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स में आएगा. हम फिलहाल इसी पे फोकस करके चल रहे हैं. फाइन. तो हमने क्या लिया? वी हैव टेकन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. Now in this aqueous solution of copper sulfate, these both are copper rods. This is anode, this is cathode. Now anode पे क्या होता है? Anode पे oxidation होता है, right? अब यहाँ as usual जब आपके पास aqueous solution of copper sulfate है, same you have copper ion there, you have H ions there, you have sulfate ions there, you have OH negative ions there. Now anode पे कौन पहुँचेगा? OH नेगेटिव आयन और सल्फेट आयन एनोड पर पहुंचेंगे. लेकिन हमने नोटिस किया कि इसका मतलब एनोड कॉपर भी है और एनोड पर आपको OH और सल्फेट आयंस भी पहुंचे हैं. तो यहाँ
इट मीन्स कॉपर को भी चांस है ऑक्सीडाइज होने का, OH को भी चांस है ऑक्सीडाइज होने का, सल्फेट को भी चांस है, लेकिन हमने नोटिस किया कॉपर इन दोनों के प्रेफरेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। नाउ दिस इज अ डिफरेंट रिएक्शन। हियर कॉपर ऑक्सीडाइजेज in preference to OH negative ion and sulfate ion. It all depends on their potential values. So here the different reaction, यहाँ एनोड पे OH ऑक्सीडाइज हुआ था, यहाँ एनोड पे जब आप कॉपर रॉड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कॉपर आयन बना रहा है, मीन्स यहाँ एनोड पे कॉपर आयन सॉल्यूशन में जाएगा। अब कैथोड पे क्या चलेगा, कैथोड पे 2 आयंस हैं आपके पास, यू हैव कॉपर आयन एंड H आयन। एज यूजुअल 2 आयंस हैं, क्योंकि कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो यहां कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अब जब आपसे कहा जाएगा कि आपने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस किया यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो प्रोडक्ट बताओ, तो आप लिखेंगे कि एनोड पर कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और कैथोड पर कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है। अगर आप देखें एक तरीके से प्रोसेस क्या चल रही है, एनोड से कॉपर आयन सॉल्यूशन में गया और सॉल्यूशन से कॉपर आयन रॉड पर गया। समझे आप, सॉल्यूशन से रॉड से कौन गया, कॉपर आयन सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से कॉपर आयन रॉड पर गया। ये प्रोसेस आपके पास चल रही है। दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस गोइंग ऑन। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कब कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा। यहाँ पर हमने कितना आसानी से बोल दिया कि कॉपर आयन और H आयन में H आयन की प्लेस पे कॉपर आयन डिस्चार्ज होगा। हमने कितना आसानी से बोल दिया कि सल्फेट आयन और OH नेगेटिव आयन में OH आयन नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होगा, जबकि प्रीवियस वीडियो में क्लोराइड आयन डिस्चार्ज किया था। तो मैंने बोला था एक सीक्वेंस है, कुछ चीजें तो रिटेन करनी पड़ेंगी ना यहाँ पर। तो इस हिसाब से अगर हम नोटिस करें, देयर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये ऑर्डर बैठता है। अगर 2 आयंस इसमें से एक साथ आएंगे, H आयन भी इसमें आता है, क्योंकि H आयन की भी टेंडेंसी है, इट ऑल्सो फॉर्म्स H पॉजिटिव आयन, ये भी मेटलिक कैरेक्टर को शो करता है। तो अगर आपके पास सीधा सा लॉजिक है, अब एक चीज नोटिस करिएगा, हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था उसमें Na पॉजिटिव और H आयन था, तो हमने प्रेफरेंस दिया था। अब बताओ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो Na पॉजिटिव और H आयन में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, H आयन का, तो H आयन वहां रिड्यूस हो गया था। आज आपके पास H आयन और कॉपर आयन है, अब बताइए H आयन और कॉपर आयन में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, कॉपर आयन का, इसलिए आज कॉपर आयन डिस्चार्ज हो रहा है। समझ में आ रही है बात। 2 आयंस जो इस सीरीज में सबसे लोअर साइड पर होगा, जो सबसे आगे होगा, जिसका लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा, वही डिस्चार्ज होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ एनायंस, अब आप चेक करो, हमारे पास प्रीवियस वीडियो में जो हमने NaCl को यूज किया था वहां OH और Cl नेगेटिव आयन थे। बताइए किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर था, Cl नेगेटिव का, तो इससे हमने उसमें Cl नेगेटिव को डिस्चार्ज किया। आज हमारे पास क्या है, सल्फेट आयंस है एंड OH है, अब किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, OH नेगेटिव आयन का, इसलिए OH नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होता है। तो रिमेंबर, इस सीक्वेंस को आप ध्यान रखेंगे, दैट विल बी एनफ। आपके 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से, NCERT सिलेबस के हिसाब से दिस सीक्वेंस इज एनफ। आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आयन कब डिस्चार्ज होगा। मैं क्लियर, रीड करो इसको, एक आध एग्जाम्पल हम आपसे और लेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस, बट दिस इज हाउ द प्रोसेस इज एक्चुअली गोइंग ऑन। फिर बोल दूं, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, हम ये देख रहे हैं कि क्या क्वालिटी बन रही है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है। दिस इज नॉट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, हम क्वांटिटी मेजर करके नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ क्वालिटी बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बनेगा, और इन पोटेंशियल सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। थैंक यू, वॉच एंड सब्सक्राइब।